सो डिपेंड कि भाई कौन सी सिटी में कहाँ आपको पोस्टिंग मिली है, बट ऑन एवरेज वर्क रहता है यहाँ। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज आपका जैसे यूपीएससी में पेपर 1 पेपर 2 होता है और लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। इफ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क इन अब्रॉड, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो रियली है वो तो यहाँ मिलने वाला है, इंडिया में तो मिलने वाला नहीं है, यू ऑलरेडी नो। और आपको पर्क्स मिलते हैं लाइक हाउसिंग, फैमिली पास, मेडिकल बेनिफिट्स, जिंदगी भर रेलवेज में फ्री में आप ट्रैवल करोगे। दिस इज द best thing for railways. Wish you very happy Diwali to Diwali everyone. from Team Academically, and for all the medical doctors and dentists and physiotherapists out here, wish you very happy Diwali. Hello everyone, welcome to Academically. This is Dr. Sonal signing in for you, and today we are with Akram sir. We will be basically discussing about the medical officers and the different medical job vacancies. All the MBBS doctors, MD doctors, this video is actually for you because we actually don't know whether we are getting placed or what kind of job opportunities we have. Watch this video till the end so that you know all about the government job opportunities as a medical practitioner. Sir, we'll start with the medical officer jobs. Okay. So first job basically top medical job vacancy already, तो we'll going to discuss कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल एग्जाम की कितनी सैलरीज होती हैं और जनरली एग्जाम की डेट क्या होती है ना, एंड प्रिपरेशन टिप कैसे है, हाउ यू कैन प्रिपेयर, क्या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस in this video. Yes, and guys, one more thing we want to add that a lot of newspaper clippings and all the different kinds of documents keep on circulating which cause a lot of confusion. Everybody, don't worry, we will discuss everything over here with proof and logic, whatever notification and have come up, so that you get the actual idea of what kind of job opportunities you have according to the Health Ministry of India for the medical officers. Okay, yes. So let's proceed to the key takeaways. So in this particular video, we will know about the top medical government exams in India. As sir told, we will learn about the eligibility, the exam pattern, when are the dates which will be up for you, exploring lots of benefits like salary, perks and selection process. You will get 2026 entire exam timelines and we will discover how to prepare effectively and choose the right path. Let's get started. Sir, we'll start with why choose a government medical job. ये फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट, तो उसी के लिए सारे लोग इंडिया में जो है जॉब वांट करना चाहते हैं, एंड जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है, एंड सैलरी भी आजकल बहुत अच्छी हो गई है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में कंपेयर टू द अर्लियर जो सैलरीज हुआ करती थी, राइट, एंड बहुत सारे पेंशन या NPA, HRA, DA, बहुत सारे जो और भी चीज़ें जो मिलती हैं, एंड प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है कि भाई इसलिए बंदा ये CMO बन गया फॉर एग्जांपल, चीफ मेडिकल ऑफिसर, कितना बड़ा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट, और आप अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं, कितने लोग आपको बेसिकली लोग जितने भी आते हैं बहुत ही गरीब होते हैं, एंड दे सी यू एज लाइक कि भगवान, कि यू आर उनका भगवान है, आप उनकी जान बचा रहे हो, राइट। आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो वो वाली शायद फीलिंग ना आए, बट यहाँ पर डेफिनेटली आएगी, Yes sir, and sir, a lot of research and academic opportunities also you get अगर हम एम्स में जाएं या अदर इंस्टीट्यूट्स में जाएं, और सर एम्स का टैग लगना ही अपने में CV में बहुत बड़ी बात होती है। Yes, definitely, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, आप फर्दर स्टडीज आप कर सकते हो, रिसर्च करना है आपको, है ना, ऑल दोस थिंग्स। Yes, and then there is work life balance and long term growth, so you get a good work life balance, a long term growth, है ना सर। नॉर्मली डॉक्टर्स का क्या होता है कि रात भर वो मतलब नाइट शिफ्ट लग रही है, डे शिफ्ट लग रही है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो इन जॉब्स में क्या एडवांटेज है इस चीज को लेकर? तो बहुत सारे क्या है, CSC PHC स्पेशली वहाँ पर जनरली पेशेंट तो कभी आ सकता है, बट जनरली वहाँ पर 2 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, किसी कोई दिन में कोई रात में, ना, तो इट्स लाइक कि आपको इतना बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा अगर ऐसे करते हैं जनरली। Right. So guys, it's very convenient for you. Moving on to the top medical government exams in India. Sir, कौन से top government medical exams है, कैसी पोस्ट ऑफर होती है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे जो है UPSC CMS दिया गया है ना, UPSC मिनट करती है उसको, तो ADMO या GDMO उस टाइप की जो है पोस्ट ऑफर करता है, तो उसका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा, दोनों को मिला के जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड अगर आप देखें एम्स CRE की जो वैकेंसीज आती हैं, अभी जो वैकेंसीज आई थी या रिसेंटली रिजल्ट भी आया है, तो ग्रुप B और ग्रुप C के अंदर जो CBT मतलब उनका एक कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद में जो है एक स्किल टेस्ट यहाँ पर जो लोग लेते हैं, एम्स लेती है ना, फिर ESIC मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आती है, या इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर जो होता है, रिटर्न उसका भी इंटरव्यू है, एंड देन फिर जो है AFMC आर्म फोर्स मेडिकल जो भी ये भी लेते हैं, SSC
मेडिकल ऑफिसर जनरली ये लोग हायर करते हैं, इंटरव्यू प्लस इसका जो है मेडिकल लेते हैं यहाँ पर। फिर स्टेट पीएससी भी, हर एक स्टेट का पीएससी भी वहाँ पर जो है हायरिंग करता है वेरियस पोस्ट के लिए। जनरली ये हायर मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के लिए हायर करते हैं, राइट। उसका भी जो रिटन और इंटरव्यू होगा। फिर रेलवेज भी हायर करता रहता है, राइट। एडीएमओ या स्पेशलिस्ट पे वो हायरिंग करते हैं, रिटन और उसका जो है मेडिकल उसका भी वही होता है। एंड सीजीएचएस भी हायरिंग करता है। तो ये सारे जो हैं ये टॉप वैकेंसीज है, गवर्नमेंट हायरिंग करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी जॉब्स आती रहती है टाइम टू। राइट। एंड सर इसमें जनरल प्रैक्टिशनर के लिए भी है और स्पेशलिस्ट के लिए भी ये लोग अलग से करते हैं। यस यस यस, जो इसने एमडी/एमएस किया हुआ है, राइट, तो दे विल अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट। जो सिंपल एमबीबीएस है वो जनरली मेडिकल ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो रिटन एग्जाम भी है सर, इंटरव्यू भी है। एंड आई थिंक अगर बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है तो वो इंटरव्यू के साथ साथ रिटन एग्जाम भी ले लेते हैं कुछ बच्चों का। एंड अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इफ यू हैव गॉट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर, तो उससे भी बेनिफिट मिलता होगा इन सारे जॉब्स में। यस सर, नाउ विल टॉक अबाउट यूपीएससी सीएमएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएमएस के बारे में बात करेंगे। सर इसकी नोटिफिकेशन आई है मार्च 11 2026 की, टेंटेटिव है। एग्जाम डेट इसका होगा अगस्त 2 में। एलिजिबिलिटी इसके लिए है एमबीबीएस ग्रेजुएट प्लस फाइनल ईयर ऑल्सो कैन अप्लाई। मतलब इंटर्नशिप के लिए नहीं मांग रहे हैं, अगर आप इंटर्नशिप में हो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। पोस्ट इज असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, जिसको एडीएमओ और जीडीएमओ बोलते हैं। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज, आपका जैसे यूपीएससी में पेपर 1 पेपर 2 होता है और लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। सैलरी की सर बात करें तो ये बेसिक सैलरी है इनका ऑलमोस्ट 1,77,500 तक। उसके ऊपर एनपीए डीए पेंशन सब कुछ मिलता है। और सर यूपीएससी ऑफिसर होने के पर्क्स भी और होते हैं, सोसाइटी में आपकी अलग ही इमेज होती है। So this is for the UPSC. We will now move on to the next one, which is AIMS-CRE, sir. Yes, AIMS-CRE वही जो मैं बताता था, अभी रिसेंटली वैकेंसीज इसमें आई हुई थी। तो अगर आपने MBBS, MD, MS या DNB किया हुआ था, यू आर एलिजिबल। एंड ग्रुप बी एंड सी इसके अंदर जनरली हायरिंग की जाती है, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल के अंदर। सेक्शन पर्सन वही है, एक जो एक टेस्ट होता है इसका और फिर स्किल टेस्ट होगा, यू नो। तो एंड देन इसकी सैलरी इज़ वेरी वेरी गुड जनरली, यू नो। यहाँ पर फिर डीए फिर HRA सारी चीज़ें जो है एम्स के अंदर। और एम्स में एटलीस्ट अगर आपने काम कर 2-3 साल भी, उसका टैग ही है कितना बड़ा है, एक्स मेडिकल ऑफिसर है एम्स, राइट। आप कहीं भी जाएंगे अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है प्रेस्टिजियस माना जाएगा। यस सर। एंड डॉक्टर्स अपने जो नॉर्मल अपने क्लिनिक्स के बाहर भी बोर्ड्स लगाते हैं, उसमें अगर आप एम्स लगाओगे तो पेशेंट खुद ब खुद आपके सामने आते हैं कि यार एम्स का डॉक्टर है। नेक्स्ट सर मूव ऑन करेंगे ईएसआईसी में। ईएसआईसी में मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसमें एलिजिबिलिटी एमबीबीएस होती है सिंपल, एज लेस देन 35 इयर्स होना चाहिए। पोस्ट है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। सर इसमें काम कितना रहता है एज मेडिकल ऑफिसर? देखो इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है मेडिकल ऑफिस वाली पोस्ट में, बट इसी साल से डिपेंड कि भाई कौन सी सिटी में कहाँ आपको पोस्टिंग मिली है, यू नो। बट ऑन एवरेज वर्क रहता है यहाँ पर एज कम्पेयर टू CSC PSC। अगर आप किसी स्टेट में काम करते हैं वहाँ ज़्यादा पेशेंट आपको देखने पड़ते हैं, पर यहाँ इतना काम नहीं होता है। सो जिन लोग को लीनियंट जॉब चाहिए, आराम से जॉब चाहिए 9 to 5 वाली, वो आप इसमें जा सकते हो। योर सिलेक्शन इज सिंपल, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। सैलरी इज अगेन 1,77,500 प्लस एनपीए DHRA। जॉब रोल आपका होगा प्रोवाइड हेल्थ केयर टू इंश्योर्ड एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज। तो बहुत कम ही लोग उसमें जो होते हैं एनरोल्ड, उनके लिए आपको काम करना है। बहुत ही इजी वर्क है, गवर्नमेंट जॉब है अगेन फॉर ESIC। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू स्टेट PSC मेडिकल एग्जाम सर। सो गाइस, स्टेट PSC मेडिकल एग्जाम जैसे यूपी हो, यूपी PSC होता है, TNPSC फॉर तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लिए MPSC, ये अलग अलग स्टेट के लिए जैसा सर ने बताया। MBBS हो आप, अगर PG ग्रेजुएट हो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। द पोस्ट यू गेट इज मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट, अगेन रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, एंड द सैलरी इज अप टू 1 lakh plus state allowances plus pension you get, and you get posted in your own state. This is the best thing, you can stay with your family for that matter. Moving on to Railway Medical Services 2026. Again, this is the largest recruitment body, Railways. Again, MBBS PG is the same thing. You get a post of Assistant Divisional Medical Officer Specialist. एंड सर आई थिंक जैसे फार्मेसी में होता है, इसके भी जोन वाइज एग्जाम ही होते होंगे। यस। और आपको डिवीजन वाइज, जोन वाइज की जो एग्जाम होते हैं, और आपको पर्क्स मिलते हैं लाइक हाउसिंग, फैमिली पास, मेडिकल बेनिफिट्स। हम आप जिंदगी भर रेलवेज में फ्री में आप ट्रैवल करोगे। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर रेलवेज। सर मूविंग टू CGHS रिक्रूटमेंट 2026। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आता है, एंड दिस इज अंदर अगेन MBBS PG। सो सर ऑल इन ऑल हम ये देख रहे हैं कि इट्स कॉमन फॉर जनरल स्पेशलिस्ट एंड जनरली जो है ना, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सेम ही है, वो स्टेट में या सेंट्रल में जो हायरिंग हो रही है। यस, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज आल्सो इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहीं कहीं पे रिटन टेस्ट होता है, नॉट एवरीवेयर।
Next we have eligibility and age criteria. Sir, ये comparison है. If you can just tell about तो अगर this. आप जनरली अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो पूरा जो दिया गया है 32 साल से कम होनी चाहिए यूपीएससी में, 35, कुछ कुछ जगह पे 40 तक बोला हुआ है। स्टेट पीएससी में थोड़ा सा जो बढ़ जाती है, स्टेट में या रेलवे में सीजीएचएस में 40 तक है, बाकी 35 तक यहाँ पर है ना। यानी एम्स में जो डिपेंड करती है ईच कैटेगरीज के अंदर, राइट। और यहाँ पर 32 है जो है यूपीएससी के अंदर। एंड मेडिकल ऑफिसर नहीं, एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट नहीं, ऑफकोर्स आपको कोई पीजी करना चाहिए, राइट। तो वही Yes. इसका क्वालिफिकेशन वो बताया गया। राइट, सो वी हैव एक्चुअली कंपेयर्ड, आपके लिए देखो अच्छे से कंपैरिजन हमने दिया है कि एज क्राइटेरिया क्या होती है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स। Yeah. मूविंग ऑन टू द एग्जाम पैटर्न सर, ऑल इन ऑल जैसे हमने बात करी थी कि यूपीएससी, एम्स, सीएसआईसी, एफएमएस, स्टेट, रेलवे, सीजीएचएस में, सो इन यूपीएससी यू हैव ऑफलाइन, बाकी सब मोस्टली ऑनलाइन मोड होता है। की सब्जेक्ट्स अगेन विल बी मेडिसिन, सर्जरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द पीजी सब्जेक्ट्स ड्यूरेशन विल बी some 4 hours, some 3 hours. It depends upon that. So this is the detailed overview which we are giving to you. Talking about the benefits of government medical jobs, as sir told, job security, long-term career, you have attractive salary package, rural service incentive, and a very nice relaxing job. And this is the salary comparison. As we told you, you get maximum of basic pay around 1,70,000, and so several other benefits are also there. So now coming down to the preparation tips. What are the preparation tips, guys? Always revise your core MBBS subject. Especially the one thing which we have seen is, see, we train students for so many things. आपके pre-clinical subjects में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से महारत हासिल होनी चाहिए in medicine, surgery. Yes, sir. Then practice papers, attempt mock tests, follow strict timetable, and all these are the expert guidance tips for you if you are preparing for the government jobs. And how to apply? Simple. Visit the official website, online registration, exam, and then simple interview. एंड इफ़ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क इन अब्रॉड, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो रियली में वो तो यहाँ मिलने वाला है, इंडिया में तो मिलने वाला नहीं है, यू ऑलरेडी नो। बिकॉज यहाँ पर 40 आवर वीकली काम करना पड़ता है, 2 से 3 CR तक इजीली एज ए मेडिकल डॉक्टर यू कैन मेक इन ऑस्ट्रेलिया। सो इफ़ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एनी गल्फ कंट्री लाइक सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, ऐसे किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, सो वी कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर एंटायर प्रोसेस एंड कंटेस्ट टुडे। Yes, so join academically if you want to get prepared for all these things. Thank you so much, guys. Thank you so much, sir, for guiding so nicely. So this was all about the medical officer's vacancy and the job opportunities for all the MBBS MD doctors. Follow our channel to subscribe and comment if you have any other question. And to get more updates, stay connected to Academically.